बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मत मुसलमा को नई राह दिखाई। जैसे आपको अपनी कौम पर नाज है, वैसे उन्हें भी अपनी कौम पर नाज है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुजाहिदीन पर बहुत ज़्यादा नाज है। इब्राहिम रईसी का कहना था कि इस जंग में गजा और फ़लस्तीन वाले जीतने वालों में से होंगे, तबाही सेहूनियों की होगी। गजा से मुतल्लिक असूली मौक़िफ़ पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ملتمون افتخار میکنیم، هم به رزمندگانمون افتخار میکنیم، هم به امت اسلامی که امروز به حمدالله جلوه های زیباش در بین مردم پاکستان، مردم با بصیرت پاکستان که حمایت جدی خودشون رو همواره از مظلومان از فلسطین، از غزه اعلام کردن و بیزاری خودشون رو از رژیم صهیونیستی و از حامیان رژیم صهیونیستی امریکا و غربی هایی که حامی رژیم صهیونیستی بارها اعلام کردن و این وحدت بین ایران و پاکستان وحدت ناگسستنی است انشاءاللہ. کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی قوم پر بہت ناز ہے جیسے آپ کو ہے، ہمیں اپنے مجاہدوں پر بہت زیادہ ناز ہے، اور ہمیں مملکت پاکستان کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بھی جو ہمارے بھائی بہن ہیں اور حکومت ہے، اس نے جس طرح سے ایک ٹھوس انداز سے صہیونی قوتوں کے خلاف ایک موقف ہمارے ساتھ مل کے اختیار کیا ہے، وہ بہت ہی زبردست ہے اور وہ بہت ہی قابل دید ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بندھن ہے کہ جو جزو لا ینفک کی طرح اور ایک یعنی بالکل نہ الگ ہونے والے رشتے کی طرح ایک اٹوٹ بندھن بن چکا ہوا ہے ہمارا. اب آپ کو بتائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور خاتون اول سے ملاقاتیں. گورنر ہاؤس میں ایرانی مہمانوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا گیا. ایران سے آنے والے وفد کی روایتی دیسی کھانوں سے توازو کی گئی. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ابراہیم رئیسی اور خاتون اول جمیلہ علم الہدا کا لاہور آمد پر شکریہ ادا کیا. مریم نواز شریف نے ایرانی صدر اور دیگر وفد کو لاہور میں خوش آمدید کہا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اسلامی انقلاب کی 45ویں سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی. ایران کے ساتھ غربت کے خاتمے کے لیے اقتصادی منصوبوں پر کام کرنے کے خواہاں ہیں. مریم نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا. مزید کہا، صنعتی زرعی ترقی کے لیے دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی بھی ضرورت ہے. ویلیو ایڈڈ لائف سٹاک مارکیٹ میں ایران کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے. پنجاب میں ماحول دوست گرین انرجی سیکٹر میں سرمایہ کاری کے بہترین مواقع بھی موجود ہیں. ابراہیم رئیسی اور جمیلہ علم الہدا نے پرتپاک استقبال پر مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. ایرانی خاتون اول ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا رئیسی نے لاہور کا دورہ کیا. خانہ فرہنگی میں ہونے والی تقریب میں خصوصی شرکت کی. خواتین کو باصلاحیت بنانے پر اظہار خیال کیا. تقریب کا اہتمام جامعہ عروۃ الوثقی نے کیا. ڈاکٹر جعفر اناس، سمیہ راحیلہ قاضی، خانم طیبہ نقوی سمیت خواتین نے کثیر تعداد میں شرکت کی. تقریب کا موضوع بدلتے معاشرے میں عورت کا کردار رکھا گیا، جس میں خواتین کو اجاگر کرنے، پاک ایران تعلقات کو مزید بہتر کرنے اور امن و امان کو بڑھاوا دینا تھا. ایرانی خاتون اول ڈاکٹر جمیلہ علم الہدا رئیسی نے یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس کا دورہ کیا اور اپنی کتاب کی تقریب رونمائی کا بھی حصہ بنی. اس موقع پر سینئر وزیر مریم اورنگزیب، ڈی سی لاہور عافیہ حیدر، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود، ڈاکٹر جعفر اناس بھی ہمراہ تھے. اب آپ کو بتاتے چلیں، اسپیکر پنجاب اسمبلی کی سربراہی میں پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے حوالے سے اپوزیشن نے اجلاس کی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیا. اپوزیشن ارکان اسمبلی ایوان سے باہر چلے گئے. آپ واک آؤٹ کریں، شوق سے کریں. اسپیکر کی جانب سے یہ کہا گیا. پنجاب میں صاف اور شفاف الیکشن ہوا ہے. صوبائی وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزید احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے. جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا. پنجاب اسمبلی کا اجلاس حسب روایت کی تقریر سے شروع ہوا. سوالات 20 پوائنٹ آف آرڈر پر اپوزیشن لیڈر بولے، جبکہ شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا حالیہ انتخابات نتائج کو. تاہم وقفہ سوالات میں جو ہے وہ جاری رکھے گئے. 1 گھنٹہ تک وقفہ سوالات کے جواب دیے گئے. تو اپوزیشن کے اعتراضات پر جب صوبائی وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان بولنے لگے تو اپوزیشن کی جانب سے شور شرابہ کیا گیا، احتجاج کیا گیا اور واک آؤٹ کیا گیا. اس موقع پر وزیر پارلیمانی امور میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے اپوزیشن کو الیکشن پر کھری کھری سنا دی اور کہا کہ آپ جس کھلاڑی کو ماننے والے ہیں، آپ میں تو سپورٹس مین اسپرٹ ہے ہی نہیں اور ہار گئے، اب رونا شروع کر دیا ہے. صاف صاف
साफ और शफाफ इलेक्शन पंजाब में हुआ। आप धांधली की बात कर रहे हैं। अपोजिशन ने स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के रवैये पर ऐवान से वॉकआउट किया। स्पीकर ने कहा कि आप वॉकआउट करें, शौक से करें, वॉकआउट आपका हक है। ताहम मुश्तबा शुजाउर-रहमान ने इस मौका पर जो है वो कहा कि नवाज शरीफ पर अवाम ने एक मरतबा फिर एतमाद का इजहार किया। और आप पीटीआई के 8 फरवरी वालों ने भी 21 अप्रैल को मुस्लिम लीग नून को वोट दिया है। आप अब अपना गुस्सा हम पर निकाल रहे हैं। हम सारे इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। नारोवाल में धुंध में प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे। इस धांधली के सबूत इलेक्शन कमीशन को तो लाकर दें। जब फिरौन बनकर बानी पीटीआई बैठा हुआ था तो तब भी हम जीतते थे। अगर अपोजिशन के पास सबूत हैं तो मुतलका फोरम पर दें। खिलाड़ी के पैरोकार होकर बुरी तरह। जी ठीक है, राउद इरशाद हमारे साथ मौजूद थे, पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। साबिक निगरान हुकूमत का लैंडमार्क प्रोजेक्ट रिंग रोड सदरन लूप 3 पंजाब हुकूमत के लिए हॉट केक बन गया। मुल्तान रोड स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंज का नाम वज़ीर आला मरियम नवाज या मरहूमा कलसूम नवाज के नाम से मंसूब करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। के मुताबिक मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर्स इंटरचेंज पर क्रेडिट मरीम नवाज के नाम करने के ख्वाह हैं, जबकि रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान इंटरचेंज को कलसूम नवाज के नाम से मंसूब करने के ख्वाहिशमंद हैं। इससे कबल भी रिंग रोड का एक इंटरचेंज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाम से मंसूब है। साबिक निगरान हुकूमत के दौर में मुकम्मल होने वाला मंसूबा अवामी किसी भी नाम के बजाय इलाके से मंसूब होना था। ज़राए के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी, रिंग रोड अथॉरिटी और कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमती खुशनुदनी के लिए पहले दोबारा इफ्तिताह और अब सियासी नाम से मंसूब करना तजवीज कर दिया। रिंग रोड SL3 का असर-9 दोबारा इफ्तिताह 28 अप्रैल को शेड्यूल है। शहर की अहम रिहायशी स्कीमों में बेहतर जिंदगी देने का हुकूमती प्लान। 9 स्कीमों के लिए 8 अरब 99 करोड़ से जायद के फंड्स तलब कर लिए गए। LDA ताहिर फारूक ने समरी वजीर आला पंजाब को अरसाल कर दी। जोहर टाउन, एवेन्यू 1, गार्डन टाउन, इलामा इकबाल टाउन समेत कंट्रोल्ड एरियाज की स्कीमें शामिल हैं। DG LDA ने स्कीमें रवा माली साल में शामिल करने की इस्तदा कर दी। फंड्स एलोकेशन और ग्रांट इन एड देने की भी दरखास्त कर दी। पहले फेज में 9 स्कीमें जबकि दूसरे फेज में इजाफी फंड्स के साथ दीगर स्कीमें शामिल होंगी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, कर्ब स्टोन्स, ग्रीन एरियाज की बहाली होगी। सरकारी हदूद में रिहायशी स्कीमों में तजावुजात का खात्मा भी यकीनी बनाने पर काम किया जाएगा। लेस्को में ओवर बिलिंग के खिलाफ होने वाली तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आ गई। FIA ने लेस्को चीफ समेत SDOs, चीफ इंजीनियर्स तक मुकदमा दर्ज करने का इंदिया दे दिया। पावर डिवीजन ने भी लेस्को को ओवर बिलिंग करने से रोक दिया है। लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शाहिद हैदर, डायरेक्टर कस्टमर सर्विस सरवर मुगल ने FIA हुकाम से मुलाकात की। मुलाकात में तमाम सर्कल्स के सुप्रीडेंट इंजीनियर्स भी मौजूद थे। इस दौरान लेस्को के अफसरान ने ओवर बिलिंग पर होने वाली तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। FIA ने ओवर बिलिंग पर SDOs, एक्सियंस और SS के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने बारे आगाह किया। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विक ने कहा कि ओवर बिलिंग पर किसी सूरत मुआफ़ी नहीं। गुज़श्ता माह भी ओवर बिलिंग की गई, ताहम अब एक यूनिट की ओवर बिलिंग सामने आने पर कार्रवाई होगी। लेस्को चीफ ने पावर डिवीजन को FIA से मुलाकात के बारे आगाह किया तो पावर डिवीजन ने भी लेस्को के आला अफसरान को ओवर बिलिंग करने से रोक दिया। सरकारी स्कूलों की भी सुनी गई। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1000 सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन का ऐलान कर दिया है। मिडिल स्कूलों को हाई और हाई स्कूलों को हायर सेकेंडरी स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्कूलों से SNE मांग ली। SNE में असातिज़ा और कमरों की तादाद समेत स्कूलों के बजट का रिकॉर्ड मुहैया किया जाएगा। स्कूलों में बच्चों की मौजूदा तादाद, अखराजात का तखमीना और फरोग तालीम फंड का रिकॉर्ड भी मुहैया करना होगा। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज को मरासला भिजवा दिया। एजुकेशन अथॉरिटी स्कूलों की अपग्रेडेशन के लिए 30 अप्रैल तक डेटा मुहैया करने के पाबंद होगी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक रिकॉर्ड को देखते हुए स्कूलों की अपग्रेडेशन का फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात के वादों के बावजूद 14,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और मॉनिटरिंग अफसरान मुस्तकिल ना हो सके। असातिज़ा की मुस्तकिली 3 साल से इल्तवा का शिकार है।
15,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और मॉनिटरिंग अफसरान मुस्तकिली के लिए ख्वार हो गए। सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा की मुस्तकिली का वादा किया था। असातिज़ा की मुस्तकिली 3 सालों से इल्तवा का शिकार है। जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन राना लियाकत अली का कहना है कि सूबाई वज़ीर तालीम अपना वादा पूरा करें। बहुत से असातिज़ा बगैर मुस्तकिल हुए फौत हो गए हैं। राना लियाकत अली का कहना है नून लीग की हुकूमत की जानिब से इलेक्शन से कबल असातिज़ा को मुस्तकिल करने की यकीन दहानी कराई गई थी। अब बात करें बारिश के बाद शहर के नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। निकासी आपकी नाकिस सूरत हाल से इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत में बारिश का पानी जमा हो गया। तबाह हाल सड़क पर जमा पानी से इलाका मकीनों की आमदोरफ्त मुतासिर रही। इत्तेहाद कॉलोनी कोट लखपत के मकीनों का कहना है कि इलाका अरसा दराज से इंतजामी अदम तवज्जुही का शिकार है। गलियों और सड़कों की तबाहाली और सीवरेज मसाइल ने मुश्किलात से दो चार कर रखा है। शहरियों का कहना था कि निकासी आपकी नाकिस सूरत हाल के बायस जब भी बारिश आती है सड़क पर पानी जमा हो जाता है, जिससे न सिर्फ आमदोरफ्त बल्कि दीगर मामूलाती ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि मुतलका इंतजामी इदारे शिकायत के बावजूद मसाइल हल करने में नाकाम हैं। इत्तेहाद कॉलोनी के मकीनों ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर निकासी आपकी सूरत हाल बेहतर बताने के साथ साथ दरपेश दीगर मसाइल फौरी हल करवाएं। नमाज पढ़न जाने हैं जी, इत्थे बारिश ही पानी खलोता रहता, बारिश ना भी होवे तां भी पानी खलोता रहता है। तो जे बारिश हो जाए तो होर ज़्यादा पानी खलो जाता है। तो नमाजियां नूं तो वैसे भी शहरी आमदोरफ्त वास्ते कि वो मुश्किलात पैदा होती है। रोज़िया जे पहले भी रोज़िया तो पहले भी इन्होंने शिकायत की थी, ये कोई इनका हल नहीं होया जी। वो आदमी आए ने आके वेख के वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंतखाबी हल्का PP 159 कूड़े करकट सीवरेज मसाइल की अमाजगाह बन गया। उमर टाउन फिरोजपुर रोड के गलियों में जमा कूड़ा करकट और खुले मैनहोल्स ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। हल्का PP 159 के इलाके उमर टाउन फिरोजपुर रोड के मकीनों का कहना है कि इलाका अरसा दराज से इंतजामी नज़रों से ओझल है। सफाई सुथराई के नाकिस सूरत हाल के बायस गलियों में कूड़े करकट की भरमार है। कूड़े करकट और गंदगी से उठने वाली बदबू ने इलाके का माहौल ताफून ज़दा कर दिया, जिससे सांस लेना मुहाल हो चुका है। कर हफ्ते हफ्ते आते नहीं है, ठीक है, उनको कहते हैं कि यार तुम कूड़े वाले अगर आ तो, और ये गलियां देखो, सही है 200 रुपये महीना भी देते हैं। यहाँ तो हम 200 रुपये महीना देते हैं, वो 200 रुपये महीना लेकर भी नहीं आते। वो आप ऊपर जाके देखो अभी बनाना वो कितने कचरा कूड़ी है, ठीक है। हालांकि मरीम नवाज को हमने अल्लाह अल्लाह करके वोट देकर जिताया गया, हमारी गरीबों की सुनी जाएगी, पर हमारी नहीं सुनी जा रही, सबकी सुनी जा रही है। अब आपको बताएं, शहर में ट्रक और बस ड्राइवर्स ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां करने लगे। कनाल रोड पर हादसे के बावजूद ड्राइवर्स अंडरपास के नीचे से गाड़ियां गुजारने लगे हैं, जबकि ट्रैफिक कवानीन में बसों और ट्रक को अंडरपास के नीचे से गुजरना ममनू करार दिया गया है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे अफशान रिजवान से। जी अफशान, बताइएगा। की बुनियाद पर ही बस ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर्स की जानिब से ट्रैफिक कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, लेकिन एक कानून जिसकी वो बिल्कुल पाबंदी नहीं करते हैं वो है अंडरपास से अपनी हैवी व्हीकल्स को गुजारना। बस ड्राइवर्स और ट्रक ड्राइवर तेज़ रफ्तारी से कनाल रोड के जो अंडरपास है वहाँ से इन व्हीकल्स को, इन गाड़ियों को गुजारते हैं, जिसकी वजह से कई बार माजी में हमने देखा कि हादसा भी रूनुमा हुए हैं। हुकूमत की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर हदायत भी जारी की गई हैं, बोर्ड्स भी लगाए गए हैं जिनके ऊपर 10.6 फुट का ऑर्डर भी लगाया गया है कि इतने लंबाई से ज़्यादा की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ से ना गुजरें। बहुत सारी हदायत जारी करी जाती हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से, लेकिन उसके बावजूद ट्रक ड्राइवर्स और जो बस ड्राइवर्स हैं वो माली और जानी नुकसान की परवाह किए बगैर इस अंडरपास से जो है वो गुजरते हुए नजर आते हैं, जो कि अपने लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं और साथ ही साथ दूसरों के लिए भी परेशानी का सबब बनते हैं। बाज़ दफ़ा तो अंडरपास से गुजरते हुए हैवी व्हीकल्स जो है वो फंस जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान करना पड़ता है। कभी कभार जो है हैवी लोडेड बस जो होती हैं, जिसके ऊपर भी, छतों के ऊपर भी अक्सर जो है मुसाफिर जो है बैठे होते हैं, उन्हें भी बेदिहानी में वो अंडरपास से गुजारते हैं, जिसकी वजह से हादसा रूनुमा होते हैं। हुकूमत की जानिब से ये बारहा दरखास्तें की जाती हैं कि इधर से ना गुजरा जाए और बोर्ड्स भी लगाए जाते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स किसी की नहीं सुनते हैं और वो अपनी मनमानी करते हुए यहाँ से गुजरते जाते हैं। मजीद हमने यहाँ एहलकार मौजूद थे, एक ट्रैफिक एहलकार के, उनसे भी बात की। उनका कहना था कि हमने भी बड़ी दफ़ा यहाँ पे लोगों के चलान भी करते हैं और साथ ही साथ उन्हें वार्निंग भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो वैसे ही यहाँ से जो है अपनी गाड़ियाँ जो है उसी तेज़ रफ्तारी बढ़कर रफ्तारी से गुजारते हुए नजर आते हैं, जो कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसान का बाइस बनते हैं। जी ठीक है अफशान रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।
खसूसी अफराद 3.5 अरब रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी है। लाहौर में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने विमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला पंजाब ने खसूसी अफराद को बिला सूद कर्जे देने का पैकेज मंजूर कर लिया। पंजाब हुकूमत 70 करोड़ रुपए सालाना कर्जे पर सूद खुद अदा करेगी। वज़ीर आला ने बिला सूद कर्जे देने के लिए 3.5 अरब रुपए मंजूर कर लिए। पहले मरहले में 34,000 खसूसी अफराद को 1 से 2 लाख तक कर्जे दिए जाएंगे। खसूसी अफराद को कारोबार करने और रोजगार के लिए ये कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से समरी सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर इकबाल हुसैन ने अरसाल की थी। वजीर आला मरियम नवाज ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। मंसूबा अगले 3 साल में मुकम्मल होगा। लाहौर के ड्रग सेंटर्स पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। वजीर आला पंजाब ने हर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में विमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाने की भी मंजूरी दे दी। एक सेंटर पर 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। पूरे सूबे में 8 वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर बनाए जाएंगे। सेंटर्स में तशद्दुद का शिकार खवातीन को रखा जाएगा। नफ्सियाती इलाज, शेल्टर समेत तमाम सहूलतें होंगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की पंजाब सरमायाकारी बोर्ड आमा चौधरी शाफे हुसैन ने चीन की कंपनी के वफ्द से मुलाकात की है और चीनी कंपनी का चिप और दीगर कार्ड्स की मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी में दिलचस्पी का भी इजहार किया है। इस मुलाकात में सेक्रेटरी सनअत व तिजारत एहसान भुट्टा जलाल हसन ने शिरकत की है, जबकि चीनी कंपनी XH स्मार्ट टेक लिमिटेड के अहदेदार भी मुलाकात में मौजूद थे। चिप और कार मैन्युफैक्चरिंग में सरमायाकारी का वसी स्कोप मौजूद है, सूबाई वज़ीर की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं। पंजाब के इंडस्ट्रियल जोन में सरमायाकारी की वसी गुंजाइश भी मौजूद है। अब आपको बताएं, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इन एक्शन नवाज शरीफ हस्पताल यकी गेट के 4 एहलकार फ़राइज़ में गफलत पर मुलाजमत से मुअत्तल कर दिए गए। स्टोर कीपर मोहम्मद जमील, कंप्यूटर ऑपरेटर जिशान सदीक को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि लेबॉर्ट्री असिस्टेंट सज्जाद गिल, वार्ड बॉय वकार खलील भी मुलाजमत से मुअत्तल कर दिए गए हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से फ़राइज़ में गफलत और मुबैना जो है वो बदनवानी पर जो मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई है उसका सिलसिला जारी है। गवर्नमेंट नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट की 4 एहलकार जो हैं उनको फ़राइज़ में गफलत और बदनवानी पर जो है वो मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। इनमें स्टोर कीपर मोहम्मद जमील, कंप्यूटर ऑपरेटर जिशान सदीक, लेबॉरेटरी असिस्टेंट सज्जाद गिल और वार्ड बॉय वकार खलील शामिल है। इन चारों एहलकारों को न सिर्फ मुलाजमत से मुअत्तल किया गया बल्कि इनको फौरी तौर पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है और इन चारों एहलकारों पर मुअत्तली के बाद दोबारा नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट में दाखिला जो है वो भी उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। ये अस्पताल की प्रेमिसेस में दाखिल भी नहीं हो सकेंगे, ये भी हुक्म दिया गया है। जी ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का 1 लाख सस्ते अपार्टमेंट्स की तामीर का मंसूबा 26,000 रुपये माहाना किस्त पर 1 लाख अपार्टमेंट्स शहरियों को दिए जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने अपनी छत अपना घर मंसूबा पर इब्तिदाई सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। एक अपार्टमेंट की कीमत 15 लाख रुपए होगी। पंजाब हुकूमत अपार्टमेंट की तामीर पर 60% सब्सिडी देगी। शहरी 40% रकम किस्तों में अदा करके अपार्टमेंट ले सकेंगे। लाहौर में रायविंड रोड पर 5,000 अपार्टमेंट्स की तामीर होगी। पंजाब हुकूमत ने 1 लाख घरों की तकसीम पर कवायदो जवाबित तय करने का हुक्म दे दिया। इस हवाले से सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी रूल्स बनाएगी। सूबाई वजीर मलिक फैसल अली खोखर ने खुली कचहरी लगाई, शहरियों के मसाइल सुने और फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। सूबाई वजीर खेल ने 500 एथलीट तैयार करने का भी ऐलान किया है। सूबाई वजीर खेल मलिक फैसल अयूब खोखर ने आइंदा 5 सालों में लाहौर समेत पंजाब भर में 1200 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने का ऐलान किया है। तमाम खेलों के लिए अंडर 16 टैलेंट हंट प्रोग्राम्स शुरू करने का भी ऐलान किया, जबकि मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि 12 खेलों की लीग्स की हिकमत अमली मुरतब कर ली है। खेलों की तरवीज के लिए यूनियन कौंसल लेवल पर काम कर रहे हैं।
डीजी ताहिर फारूक का एलडीए वन विंडो सेल का दौरा। वन विंडो सेल की रिवैम्पिंग, दाखिली और खारजी रास्ते की अपग्रेड करने की हिदायत कर दी। चीफ इंजीनियर एलडीए इसरार सईद और डायरेक्टर आर्किटेक्ट ने मुजवजा प्लान बारे ब्रीफिंग दी। डीजी एलडीए ने कहा कि वन विंडो सेल की पार्किंग और मरकजी इमारत को अपग्रेड किया जाए। वन विंडो सेल में तमाम सर्विसेज को मजीद बेहतर अंदाज में इंटीग्रेट किया जाए। शहरियों को बेहतर सर्विसेज की फराहमी के लिए एलडीए में रिफॉर्म्स का सिलसिला जारी है। डीजी एलडीए को ब्रीफिंग में बताया गया कि वन विंडो सेल आइडेंटिफिकेशन सेल को अपग्रेड करने से शहरियों को सहूलत मिली है। सेक्रेटरी बल्दिया शकील अहमद मियां से कंट्री डायरेक्टर वाटर एड मियां मोहम्मद जुनैद की मुलाकात। सफाई सुथराई को मजीद बेहतर बनाने के लिए वाटर एड के साथ इश्तराक करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। मुलाकात में सूबाई कोऑर्डिनेटर, सूबाई मैनेजर, टीम लीड BCCD वाटर एड ने शिरकत की है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को कंट्री डायरेक्टर ने वाटर एड की 5 साला हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग दी है। मुलाकात में प्लास्टिक बैग्स की रोकथाम और सैनिटेशन के हवाले से अवामी आगाही मुहिम चलाने का भी फैसला किया गया है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर की हेड क्लारा स्ट्रेंड हॉच ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा किया, जबकि चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद से मुलाकात की। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर की हेड क्लारा स्ट्रेंड हॉच की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बारे ब्रीफिंग दी। चेयरपर्सन सारा अहमद ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए किए गए इक़दाम के बारे में आगाह किया। चाइल्ड ट्रैफिकिंग और जबरी मुशक्क़त के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफ़ाक़ किया गया, जबकि क्लारा स्ट्रेंड होस्ट ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुख्तलिफ सेक्शंस का भी दौरा किया। चेयरमैन डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन भट्ट की शाहदरा टाउन आमद। कैसर अमीन भट्ट ने नौमुंतखब MPA PP 147 हाजी मलिक रियाज से मुलाकात की। चेयरमैन डॉक्टर AQ खान हस्पताल ट्रस्ट अलहाज कैसर अमीन भट्ट ने हाजी मलिक रियाज को MPA मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और मिठाई भी खिलाई। हाजी मलिक रियाज ने कैसर अमीन भट्ट से इजहार तशक्कुर किया। हाजी मलिक रियाज का कहना था कि कामयाबी पर कैसर अमीन भट्ट का मशकूर हूँ। हल्के के तमाम मसाइल का फौरी हल अव्वलीन तरजीह है। फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया। तकरीब में सोना बोरान DAP खाद मुतारिफ करवाई गई। खाद फसल की पैदावार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगी। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड की जानिब से सोना बोरना DAP खाद मुतारिफ करा दी गई। ग्रुप जनरल मैनेजर मार्केटिंग FCC ताहिर जुवेद ने लॉन्चिंग तकरीब में खाद मुतारिफ कराई। इनका कहना था कि पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए मजीद नई खादें मुतारिफ कराई जाएंगी। हमने ये नई प्रोडक्ट एक मार्केट में आज लॉन्च कर रहे हैं, बोरॉन DAP, सोना बोरॉन DAP। इसमें ना सिर्फ 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस जो कि DAP में बुनियादी उसका आंसर है वो मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ 0.1% बोरॉन भी इसमें शामिल किया है हमने। खाद फसल की पैदावार में अहम किरदार अदा करती है। हेड ऑफ एग्रीकल्चर आफ्ताब नसीम ने भी तकरीब इफ्तिताह में शिरकत की। सोना बोरॉन DAP हमने लॉन्च किया। इससे पहले भी हम बोरॉन यूज़ करते हैं। साइंसी तौर से कहा जाता है कि बोरॉन के इस्तेमाल से तकरीबन पैदावार 10 से 23% तक बढ़ती है। हेड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड प्लानिंग सीनियर मार्केटिंग मैनेजर अस्मा नजम जुल्कनैन भी तकरीब में शरीक हुई। ये पाकिस्तान में इनोवेशन की दुनिया में एक नया कदम है। हमने पहली पाकिस्तान की DAP वैल्यू एडेड DAP जिसमें बोरान को शामिल किया, जो कि अज्जाए सगीरा है, ताकि हमारे जो काश्तकार भाई हैं उनकी पैदावार में इजाफा हो सके। DAP पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाली खाद है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा अक्सा सज्जाद, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।